Assalamu alaikum and welcome all. I am Humaira Hashmi and I am a social activist and a climate change awareness session पे जो हमने specially आपके लिए arrange किया है. And once again, thank you all for coming. और my first guest here is Iram Khan. She is the chairman of Climate Hub Forum and Fellowship USDC, Green Advocate and Climate Change Sustainable Tourism. So please, I would like your attention to welcome my first guest, and as she is a CEO of our club, Climate Forum. Please welcome her. अच्छा जी, हम अपने प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं दावत देना चाहूँगी किरत के लिए। क्या नाम था? मोहम्मद ताहिर साहब, प्लीज़ आप आइए। मोहम्मद ताहिर अंसारी फॉर तिलावत। तिलावत करनी है। वो बाद में ही अभी नहीं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। और आई थिंक अब हम फॉर्मली अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। प्लीज़ आई वांट योर अटेंशन प्लीज़, एंड आई रियली रिक्वेस्ट कि अगर थोड़ी सी खामोशी हो जाएगी तो आई वुड अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच। जी, अब मैं इनवाइट करूँगी हमारी चेयरमैन इरम खान। Ladies and gentlemen, distinguished members of the legal fraternity, esteemed stakeholders and partners, it's a profound honor to stand before you today to address a matter of critical urgency, our shared responsibility to confront the climate emergency that threatens not only Sindh and Balochistan, but also our whole nation, Pakistan, the global south, and indeed the whole world. Thanks for your attention. We at Climate Hub Forum, inspired by our recent diplomatic mission at UN Climate Conference COP29 Baku, have returned with an unwavering commitment to transform global agreements into actionable policies. Today's session serves as a platform to unite diverse voices to address pressing environmental challenges and seek collective solutions. The emergency is not local, but it's global. Globally, 2023 has marked some of the highest recorded temperatures in the world. Unprecedented heat waves, catastrophic floods, and the swift decline of biodiversity all along our coast. Reports from the IPCC highlight that the world is warming at an alarming rate of 1.2 degrees centigrade above pre-industrial levels, with the threshold of 1.5 degrees centigrade fast approaching. This threatens not only our ecosystem but also our livelihoods and food security for the billions of people living in this planet.
countries in the global south, including Pakistan, bear a disproportionate burden of climate change. Despite contributing less than 1% to global green gas emission, we rank among the top 10 nations most vulnerable to climate impact. This is coming from Global Climate Index, Risk Index 2023 studies. The climate crisis in Pakistan is no longer a distant threat. As you all know, that it is a present and intensifying emergency all over the country. As one of the most climate vulnerable countries, Pakistan is facing a confluence of environmental, economic, and social challenges that demand immediate attention. Below is a deeper dive into major areas of concern. Here I would like to sum up a few of the areas where we should be looking at. Like, what are the areas of concerns right now, especially in the province of Sindh? Air pollution. Right now, we must start with Karachi. Karachi's air quality index routinely ranks among the worst globally, with levels often exceeding 200, marking the air very unhealthy for people to breathe. According to the Pakistan Air Quality Initiative, pollutants such as nitrogen dioxide, carbon monoxide are primary contributors, stemming from vehicular emissions, industrial activity and burning of solid waste. यहाँ मैं आप सबकी तवज्जो ये चाहूँगी कि ये तीन जो फैक्टर्स हैं, इट्स नॉट ओनली इन कराची, अगर इस पूरे पाकिस्तान में देखें जो हमारी व्हीकल्स हैं, द काइंड ऑफ एमिशंस दे आर प्रोड्यूसिंग, जो हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं, ऑल्दो लॉज बहुत सारे मौजूद हैं बट इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह से उसकी जो इम्पैक्ट है वो यहाँ तक हो गया है कि हमारा एटलीस्ट एक नंबर जो WHO कोट करता है, दैट इज़ 128,000 डेथ्स एनुअली इन पाकिस्तान आर लिंक्ड टू एयर पॉल्यूशन रिलेटेड डिजीज़ेस, इंक्लूडिंग रेस्पिरेटरी, हार्ट डिजीज़ेस एंड स्ट्रोक्स. आई डोंट थिंक से कि उन लोगों का कोई कसूर है कि दे आर डाइंग, बट वी हैव टू सी लीगली आप किस तरह पूरे इस प्रोविंस को और कंट्री को बाउंड करते हैं. Right now there are over 3 million vehicles inside Karachi and an aging public transport system we all witness every day. The whole system is reliant on diesel, significantly contributing to the particular matter. अगर हम थोड़ा इंडस्ट्रियल जोन्स को देखें तो इसमें आपका कोरंगी, लांडी साइट जिस तरह के पॉल्यूटेंट्स, हैज़र्डेड पॉल्यूटेंट्स ये एमिट कर रहे हैं, अगर अभी इसको इमरजेंसी के तौर पे नहीं देखा गया, आई थिंक नेक्स्ट 5 to 10 years में दैट कैन बी मोर हैज़र्डस, नॉट ओनली टू द हेल्थ बट टू द होल कंट्री. Next is urban flooding. Excuse me. Torrential rains, poor urban planning have turned Karachi and all the other cities and towns in Sindh into a hotspot for urban flooding. अभी हमारे पास 2020 का लेटेस्ट फिगर्स हैं, उसके हिसाब से $30 billion का नुकसान ऑलरेडी हम उठा चुके हैं आफ्टर 2022. दैट इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन. इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, मेरे ख्याल है मुझसे ज़्यादा आप लोग बेहतर जानते हैं, सिंस यू ऑल आर सिटिंग हियर एंड लुकिंग इनटू द लीगल स्टफ. एनक्रोचमेंट्स इन कराची एंड ऑल द अदर सिटीज़. इस वक्त आपका दो मैं नाम लूँगी जो नाले हैं, गुज्जर और औरंगी नाला, जहाँ पे एनक्रोचमेंट को अगर हम सभी एवरी डे वी विटनेस देयर, दिस इज़ one of the primary reason of all the urban flooding in Karachi. अगर ये हमें नज़र आ रहा है
हम सब की आंखों के सामने है. So who will take the action? Today we are not here to criticize anyone, but to create an awareness कि हम सब मिल के इसका क्या solution कर सकते हैं. It's not only us कि जी हम forum पे बहुत कुछ कर लेंगे या आप सब legally. We have to collaborate on all these things. We have to convince our governments. We have to convince the chambers. आपका कराची chamber है, इस्लामाबाद chamber है, लाहौर chamber है. How we can convince the private entities that how they can collaborate with us to create those solutions. Another one is unplanned urbanization. I think हम में से सब जो last 30 years में कराची में है, we can see कि किस तरह की urbanization without any planning हो रही है, and this is one of the major cause of urban flooding. With an estimated population of over 16 million, Karachi has expanded haphazardly without any adequate drainage infrastructure. We are witness of all these things. Then again, if we talk about, ये हमारे experts हैं, वो आके इस पे ज़्यादा बात करेंगे about the coastal areas and the rising sea levels. That is their area. They will. Then come the problem of waste management. एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 12,000 टन ऑफ सॉलिड वेस्ट डेली जो है सिर्फ कराची से जनरेट होता है. यू कैन कम अप विद द नंबर्स इन योर इमेजिनेशन के पूरे पाकिस्तान से कितना जनरेट होता होगा अगर सिर्फ एक सिटी 12,000 टन डेली बेसिस पे प्रोड्यूस कर रहा है. And only 60% of it is collected. हमारे इदारे उनमें कैपेसिटी की ज़रूरत है, उनको ऑब्वियसली उनको बढ़ाने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मैनेज करने की ज़रूरत है. वी आर नॉट ब्लेमिंग देम, बट वी आर सेइंग दैट 40% ऑफ वेस्ट इज स्टिल नॉट मैनेज्ड बाय एनीवन. नॉट मैनेज. तो ये जो नॉट मैनेज बाय एनीवन है, इस पर हमने देखना होगा कि हम सबका क्या रोल है एंड हाउ वी कैन प्ले आवर रोल. Waste management में yes, one of the very important thing is plastic pollution. Again एक अंदाजे के मुताबिक आपके तमाम वेस्ट में जो पाकिस्तान में प्रोड्यूस होता है 65% is plastic. Can you imagine 65% of all waste is plastic? It means we have to come up not only with the laws and implementation, but we have to come up with a sustainable living style. क्या हम में से आज हम लोग रेडी हैं कि प्लास्टिक यूज़ को कम कर दें? हमारा एक इनिशिएटिव है, we will later announce that it's about zero waste, towards zero waste. We just initiated in Seaview. उसका मकसद ये है कि अगर हम में से आज हर कोई ये डिसाइड करता है कि we will not be using the plastic bottles anymore, जितना हो सकता है, whatever is possible, I think we all can cut down. This is a change in our behavior. So behavior also counts a lot. अगर हम में से I don't know जो पूरी आबादी है पूरे पाकिस्तान की, हम में से हर शख्स अगर ये तहिया कर ले, लॉस तो बहुत बाद में आएंगे. It's all about how we can come up with a better and sustainable lifestyle, which is very important. और अगर ये चीज़ आप लोगों की तरफ से शुरू होती है, that has a very bigger impact on the whole society. That's what we believe on. The next is open burning of waste. ये हम सब मेरे ख्याल है अपने बचपन से देखते हुए आ रहे हैं कि दुनिया भर में आप जाते हैं, when you visit many nations and many cities, we can see their waste management program. हमारे यहाँ एक ही सिस्टम है जिसको जला दिया जाए. क्या इस जलने के जो ये पूरा सिलसिला है उससे कितना कार्बन और कितने अदर हैज़र्डेड वेस्ट है वो जो आपका पोल्यूशन कर रहे हैं, दैट इज़ एडिंग इन क्लाइमेट चेंज. क्या उसको हमने कभी मॉनिटर किया है? क्या उसको हमने कभी सीरियस लिया है? इफ़ वी टेक इट सीरियस, आई थिंक वी ऑल कैन नॉट स्टैंड वन डे. हम सभी कोई ना कोई जो हम में से कुछ हो सकता है, वी विल गो एंड वी विल नॉट ओनली फाइल द केस. We don't want to again go into any public blame gaming games. We just want you all to collaborate on this thing. हम में से सबकी realization हो, आज जो लोग यहाँ मौजूद हैं और अपना अपना काम शुरू करें. The forum is ready to cooperate with you all on, especially on legal terms,
और कम अप विद बहुत सारे जो गैप्स हैं आपके क्लाइमेट लॉज में एंड एनवायरमेंटल लॉज में, उस पे काम कर सकते हैं. एडवाइस आपकी होगी, एडवोकेट हम सब मिल के करेंगे. थर्ड इज़ आपके पूरे पाकिस्तान में रिसाइकलिंग का निज़ाम जो है अभी एज सच कोई भी नहीं है. एक अंदाजे के मुताबिक, अगेन द फिगर्स आर नॉट सो एक्यूरेट, 10% ऑफ द total waste is recycled. It means there are lots of opportunities for businesses and startups to come up with the solutions. So they can tackle the 90% and they can go for recycling plants. इस पे हम काम करना चाहेंगे. That will be economically beneficial for the whole country. Coastal erosion and mangrove, उस पर मैं इतनी बात नहीं करूँगी because we have experts here. They will do more, but I will just want to give you some figures. Over the past 50 years, Pakistan has lost nearly 30% of the mangrove forest. इनकी इम्पोर्टेंस क्या है वो एक्सपर्ट्स आपको अभी बताएंगे, बट मैं सिर्फ इतना कहूँगी, अगर हमने 30% डिस्ट्रॉय कर दिया है विदाउट एनी purposeful reason, so we have to see why we want to destroy more. This should end here. According to WWF Pakistan, mangrove support $1 billion fishing industry and act as carbon sinks, sequestering 21.7 metric tons of CO2 per hectare annually. Their degradation has far-reaching implications for biodiversity and climate resilience. यहाँ पे later in the program we will announce a mangrove project which we have just initiated, और उसमें भी आप लोगों की help चाहिए होगी, because what we want कि सिंध especially जो पूरा सूबा है जो इतनी बुरी तरह से floods का शिकार होता है, इसमें we can come up with nature-based solution. इस वक्त United Nation क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में जो सबसे अहम कुछ अहम पॉइंट्स थे, वन ऑफ द पॉइंट इज़ हाउ वी कैन कम अप विद नेचर बेस्ड सोल्यूशन रादर देन विद conventional methods which we have been using for the last many decades. We have to stop them and come up with nature based solution, and mangrove is one of them. वे फॉरवर्ड में मैं इतना कहूँगी कि हमारे पास पेरिस एग्रीमेंट, ग्लासगो डिक्लेरेशन, UN SDGs, इसके अलावा ऐसे सैकड़ों डिक्लेरेशंस UN के मौजूद हैं. पाकिस्तान इज सिग्नेटरी ऑफ ऑल दीज डिक्लेरेशन, एग्रीमेंट्स एंड आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स, but we have to now realize how we can start the implementation on all these things. सिंध के अपने मसाइल हैं. एग्रीकल्चरल लॉसेस को अगर आप देखें तो इस वक्त सिंध का जिसको आप कहते हैं जो इंडस डेल्टा है, over 92% of the region is now affected by salinity. It means this salinity is killing our agricultural land. This particular thing has allowed seawater to encroach up to 100 kilometer inlands in some areas. With the construction of upstream dams and water diversions, that has significantly reduced the flow of Indus River, which is now at a fraction of its historic levels. Agricultural losses में बस मैं इतना कहूँगी, Sindh is responsible to produce 15% of Pakistan wheat and 25% of its rice. But between 2010 and 2030, Sindh experienced 30% reduction in crop yields, particularly in rice and cotton due to climate-related stressors. अगर ये हालात हैं क्लाइमेट की वजह से कि हमारा जो एग्रीकल्चर है, हमारा क्रॉप है, एक्सपोर्ट तो बहुत बात की बात है, अगर हम अपने लोगों के लिए फूड क्रिएट नहीं कर पा रहे, so it's an alarming situation for all of us. 2022 flood submerge. अब आप सिर्फ इस फिगर पे थोड़ा सा गौर करिएगा. 2.1 million hectares of cropland in Sindh, displacing millions of farmers and creating long-term food insecurity. These figures are really important.
अर्बन फ्लडिंग हम सब हर साल कराची में और कराची से आगे जितने शहर हैं उनमें फेस करते हैं जब आपका मानसून स्टार्ट होता है। आपका ठट्टा का एरिया है जो बहुत ज़्यादा इस वक्त वल्नरेबल है, और अगर मैं एक स्टडी बताऊं आपको, कोस्टल एरियाज इन सिंध एंड बलूचिस्तान आर अमंग द मोस्ट वल्नरेबल इन द वर्ल्ड टू राइजिंग सी लेवल्स। The Global Climate Index 2023 ranked Pakistan among the top 10 countries at risk from climate-induced sea level rise. This is very crucial. Then we have cyclones, storms of all kinds. We all are witnessing for the last many decades. Impact on mangroves and fisheries. इसका अभी थोड़ा सा आपको फिगर बता देती हूँ। Coastal mangroves, which provide natural protection against storms, are being destroyed. Sindh coastline has lost 20,000 hectares of mangroves only in the last 2 decades, reducing the resilience of communities to natural disasters. At least 5 lakh people जो हैं, they are dependent on fisheries. So उनकी न सिर्फ लाइफ बल्कि उनका जो ऑक्यूपेशन है वो भी इस वक्त थ्रेट में है, just because of climate change. So there are many suggestions which we will be submitting after this session to you, and we hope that we all can work on those recommendations, and you people should guide us on how we can fill those gaps, especially which comes under environmental laws and climate change. आप लोगों को बेहतर पता है जितने भी अभी existing laws हैं पाकिस्तान के या सिंध के जितने भी एक्ट्स हैं, जो लास्ट 5 ईयर में क्लाइमेट चेंज में ग्लोबल चेंजेस आई हैं, पाकिस्तान का क्लाइमेट चेंज लॉज उसको अभी तक फुल फेज केटर नहीं कर पा रहा। देयर आर सो मेनी गैप्स। वी आर नॉट वर्किंग ऑन क्लाइमेट डिप्लोमेसी, वी आर नॉट वर्किंग ऑन क्लाइमेट जस्टिस, वी आर नॉट वर्किंग ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। अगर हमने इन चीज़ों पे अभी काम नहीं किया, आई डोंट थिंक सो कि कभी कर पाएंगे। दिस इज़ द इमरजेंसी राइट नाउ। कुछ जो आपके ग्लोबल एग्रीमेंट्स हैं उनका मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। वी हैव पेरिस एग्रीमेंट, वी ऑल नो दैट हमारे यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वी रियली वांट टू वर्क ऑन गोल 13 दैट इज़ क्लाइमेट एक्शन, गोल 14 लाइफ बिलो वाटर, एंड गोल 15 दैट इज़ लाइफ ऑन लैंड। इन तीनों पे हम चाहेंगे कि वी वांट टू वर्क विद यू ऑन दैट। देन वी हैव ग्लासगो डिक्लेरेशन। इस पे मैं बस इतना कहूँगी कि आपके पहाड़ी तमाम इलाके जो हैं इस वक्त जहाँ पर टूरिज़म को हम प्रमोट कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वी आर रूइनिंग दोज एरियाज। हम वहाँ के जंगलात काट रहे हैं ताकि हम होटल्स बना दें। सो देयर शुड बी सम सस्टेनेबल टूरिज़म पॉलिसीज़ which should guide the hotels and the tourism industry, that how they have to come up with a proper plan. इस वक्त एक haphazard planning के तहत जंगलात को काटा जा रहा, हम सब जानते हैं। इस्लामाबाद से लेके गिलगित हुंजा तक क्या हो रहा है, we all know that, but I believe you are the one who can stop that with bold actions and laws. Then again very important point, UNESCO World Heritage Preservation. इस पे मैं कहूँगी कि आपके पास अभी बहुत सारे ऐसे कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं यूनेस्को के जिसमें 2 बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। One is Mohenjo-daro, another is Texila. Both are, I think, thousands of years old civilization that comes under UNESCO World Heritage. But इस वक्त climate change, flooding, रेनफॉल, इन तमाम चीज़ों की वजह से वो यहाँ तक पहुँच गए हैं कि हमें इनको बचाना मुश्किल हो गया है। वी नीड फंडिंग, वी नीड फाइनेंसिंग फॉर दैट। अभी तो ये है कि आपके मुल्क में खाने के लिए पैसे नहीं हैं, बट दीज साइट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू वर्क हार्ड ऑन क्लाइमेट डिप्लोमेसी टू टैप द क्लाइमेट फाइनेंस फ्रॉम दोज कंट्रीज हु आर रिस्पॉन्सिबल for 70% of climate change in the world. We are not the contributors to climate change. We are the worst sufferers. We have to understand that part, I believe. Again, there is another very interesting declaration that related to UN Decade on Ecosystem Restoration. इसमें हमने ये 10 साल जो हैं इसमें अपने तमाम लैंड को ऑल ओवर द वर्ल्ड रिक्लेम करना है, रीजनरेट करना है और इनको रिस्टोर करना है, ईदर इट्स ऑन कोस्टल लाइन और ऑन आवर माउंटेन्स।
It's very important, and Pakistan is a signatory on this, so we have to work a lot, especially in terms of mangroves. यहाँ पे मैं थोड़ा सा बीच में आई जस्ट वांट टू say welcome to President Karachi Bar Association Advocate Amir Nawaz Waraij. Welcome to our session. And Advocate Muhammad Ghulam Rahman Qurai, General Secretary Karachi Bar Association. We are really grateful that they have created an opportunity for us to come here and have a session like this. Thank you so much. We are really grateful. Program. We are grateful to Imran Aziz, Advocate Imran Aziz also, who is also here in the session. Again, thank you so much for you all. Program को थोड़ा सा आगे भी बढ़ाते हैं और थोड़ा सा कट डाउन भी करते हैं. हमारी कुछ रिकमेंडेशंस होंगी. यहाँ तो बहुत सारी बात की जा सकती है, बट वी रियली डोंट बिलीव ऑन कि जी एक सेशन हो और ख़त्म हो जाए. वी रियली वांट टू वर्क ऑन इट ऑन अ लीगल फ्रेमवर्क. इस पर कुछ रिकमेंडेशंस होंगी जो हम आपसे शेयर करेंगे आफ्टर द सेशन, मे बी आफ्टर अ वीक और सो, एंड वी रियली वांट यू to work with the forum on these issues. यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ बातें करना बड़ी ज़रूरी हैं. हम लोग यहाँ पे एक कैंपेन अपना स्टार्ट कर चुके हैं अंडर अ प्रोजेक्ट टुवर्ड्स ज़ीरो वेस्ट. इसमें अभी हमारा फर्स्ट टारगेट ये है हाउ टू in 2025 how we can make the coastal area of Sindh plastic free, and we can start it with Karachi. Last week हमने initiate कर दिया है अपने sea view beaches में clean up drive, and again मैं ये कहूँगी ये सिर्फ clean up drive नहीं है कि लोग आएँ और कचरा उठाएं. No, it's not about this. We want all the citizens, not only in Karachi बल्कि जितने भी आपके neighboring towns हैं, आपके all over Sindh, जहाँ जहाँ पे कोस्टल लाइन गुजर रही है, वो इसका पार्ट बने. और स्पेशली हम स्पेशल केयर करें. वी शुड नॉट बी यूजिंग प्लास्टिक एंड अगेन वेस्टिंग और डंपिंग प्लास्टिक इन द बीचेस. ये सिर्फ हमारे लिए नुकसानदा नहीं है, इंसानों के लिए, तमाम मखलूक़ात जो अल्लाह ने बनाई हैं, इस जो हमें नज़र भी नहीं आती. आई डोंट नो कितने बिलियंस के तादाद में होंगी आपके समंदर के अंदर, उनको तबाह कर रही हैं और इवेंचुअली उस पानी को ख़राब करेंगे जो पीना आखिर में हमने ही है. जो दरियाओं पे मतलब जो सिस्टम है पूरा, अगेन इट विल कम फ्रॉम इंडस रिवर, कम हियर एंड वी विल ड्रिंक. फाइनली वी विल बी द वर्स्ट सफरर्स. सो वी हैव टू वर्क ऑन इट. दूसरा हमारा एक प्रोग्राम है, वी वांट यू टू बी अ पार्ट ऑफ इट, दैट इज़ 1 मिलियन ट्री प्लांटेशन, जिसमें 50% रिजर्व फॉर मैंग्रोव प्लांटेशन इन सिंध एंड बलूचिस्तान कोस्टल एरिया. With your support, we want to work very focused and targeted on these two particular projects. Again, जो कराची के इस वक्त अगर बात की जाए, यहाँ पे जो heat waves बढ़ती जा रही है, we all are facing in the, especially in the summer days, we have to come up with urban forest concept. हमें ऐसे parks बनाने चाहिए. अगर कराची का, I don't know, like few years back I saw the 1970s का कोई मैप था जिसमें पूरा कराची को इसमें डिफ़ाइन किया गया था. तो जो ग्रीन स्पेसेस थे, अगर उनको रियलिटी में आज देखा जाए तो 90% आर गॉन. वाई? सवाल ये पैदा होता है कि मुझे और आपको, अगर हम एक सिटीज़न हैं, फॉरगेट अबाउट द प्रोफेशनल, हु आर वी एज अ सिटीज़न, अगर
हमारे शहर में इतनी गर्मी हो रही है, हमारे प्रोविंस में इतनी गर्मी हो रही है, कौन है जो ये दरख्त काट रहा है? कौन है जो उन पार्क्स पे कब्ज़ा कर रहा है? कौन है जो यहाँ पे इंक्रोचमेंट कर रहा है? और किस तरह हमारे बच्चों से उन पार्क्स को छीना जा रहा है? किस तरह जितने सिटीजन्स हैं इस वक्त पाकिस्तान पे, वाई वी आर नॉट गिविंग देम द राइट टू ब्रीथ द फ्री एंड फ्रेश एयर विच गॉड हैज़ क्रिएटेड फॉर एवरीवन. We are not here to blame again, to blame anyone, but we want to come up with solutions. कि आज के बाद हम किन solutions पे काम कर सकते हैं. There are many, I think इसका जो data पे मैं नहीं जाऊँगी, data बहुत ख़तरनाक है and you all can see that. Lastly, जो आपसे मुझे एक support चाहिए, जितने भी stakeholders मौजूद हैं, we are going to start 3 different committees on our forum. एक हमारा ग्रीन एडवोकेट फोरम है दैट विल वर्क ऑन द लॉज, जहाँ पे गैप्स हैं उन पे हम काम कर सकते हैं. दूसरा हम बनाने जा रहे हैं विमेन एम्पावरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज. दुनिया भर में इस वक्त देखा गया है कि जहाँ जहाँ क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट हैं, चाहे वो फ्लड्स हों या स्टॉर्म हो या सुनामीज़ हो, women are the worst sufferers. They are the worst sufferers. And to keep that in mind, we are announcing a committee on that, women empowerment and climate change. मेरा ख्याल है हम सब सिंध में देख सकते हैं कि एक फ्लड के बाद जब एक पूरी फैमिली तबाह हो जाती है तो द लेडी और द वुमेन हु इज़ लेफ्ट वो कितने चैलेंजेस को फेस करती है. तो इस पे हमें इस एजेंडे पे काम करना होगा एंड वी हैव टू कम अप विथ सम पॉलिसी रिकमेंडेशन जो कि आपके प्रोविंस में ना सिर्फ उस पॉलिसी पे काम हो, प्रोविंशियल असेंबलीज उसको पास करें और उन पे कुछ बेहतर लॉज बन सके. दूसरी एक हम कमेटी बनाने जा रहे हैं दैट इज़ फॉर ग्रीन क्लाइमेट फाइनेंस. हमने ये देखना होगा कि हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा जो क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट से जो लॉसेस हो चुके हैं अभी तक, जो मैंने से बताया 2022 के फिगर्स हैं $30 billion only in 2 months. So that is too devastated. इसके बाद मैं ये समझती हूँ कि हमने ये देखना होगा कि पूरी दुनिया में कौन से ऐसे वसाइल हैं जो क्लाइमेट फाइनेंस पे काम कर रहे हैं and how we can tap those finance and bring it in our country to finance. हमने क्लाइमेट चेंज क्रिएट नहीं किया, हम से सफ़र कर रहे हैं. जिन कंट्रीज़ ने इनको क्रिएट किया है नाउ according to the latest जो नवंबर में अभी बाकू में हुआ है COP29, that says that these countries which comes under global north, they have to finance the global south on the damages which we are facing for the last, I think, 100 years, more than 100 years after the advent of industrialization. Conclusion तो I think अभी होती रहेगी, बहुत सारे अभी हमारे स्पीकर स्टार्ट होंगे. So back to Humaira and she will invite one of our experts. Thank you. Thank you so much, Iram, for your such a wonderful information. And now I would like to invite Dr. Kanwal. She's an expert in mangroves and president of SEMP. She's doing a lot of work for mangroves environment and protection, services for environment and mangrove protection. So I would like to invite Dr. Kanwal, please. Share some good. Here the mic is for you. Assalamu alaikum and introduction मेरा हो गया कि बेसिकली मैं साइंटिस्ट हूँ और हम काम कर रहे हैं इस वक्त क्लाइमेट चेंज के ऊपर. Being a scientist, it's honor for me to invite here as a speaker thanks to the Climate Hub Forum. And हम जब क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो हमारा सबसे पहला मकसद ना डराना होता है, ना आपको उसकी, बल्कि हमारा सिर्फ एक मकसद ये होता है कि आप उसके जो ख़तरनाक पहलू हैं उनको ज़रूर देखें. Climate change is not the future event, it has been done. हम last 2 decades से इसके ऊपर बात कर रहे हैं. यानी ड्यूरिंग आवर डॉक्टरेट
हमने इस पे काम स्टार्ट किया था एंड एट दैट टाइम we were just thinking it will be happen, and after 20 years now we are observing their factors, we are observing their consequences, we are observing their severity. So let's do for action, and it's a time of action. But before going to solutions, firstly we all must know what is climate change basically. Climate change is not sudden. It happens after 2 or 3 decades. It takes time to be happened. And once it happens, it cannot be changed, but it can be slowed down. हम ये नहीं कह सकते कि मैं पूरा क्लाइमेट चेंज को ख़त्म कर देंगे. इट्स नॉट पॉसिबल. वंस इट हैपन्स हम उसकी स्पीड को स्लो कर सकते हैं. और क्लाइमेट चेंज का जो फर्स्ट स्टोरी है दैट इज़ द ग्लोबल वार्मिंग, एंड ग्लोबल वार्मिंग इज़ द स्टार्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज. हम आज ये देखते हैं कि कराची में हीट वेव्स आ रही हैं. कराची के अंदर जो हमारा पीरियोडिकली एक चेंज आया है, दिस ऑल कम्स इन क्लाइमेट चेंज. ग्लेशियर्स का मेल्ट होना, सी लेवल का राइज हो जाना, किसी साल इंतहा हो जाती है फ्लड की, किस वक्त हम ये देखते हैं कि हमें ड्राउट कंडीशन आ गई है. तो ये बेसिकली एक नॉर्मल कंडीशन से हटकर काम हो रहा है. दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड द क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज कब हुआ, कैसे हुआ? वी आर इन द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द अर्बनाइजेशन. यानी जब हमने अपनी आसानी के लिए हमने अर्बनाइजेशन की, जंगलों को काटा, डिफॉरेस्टेशन की और घर बना लिए. फिर मज़ीद अपनी सहूलत के लिए हमने इंडस्ट्रीज़ लगा ली. दैट वॉज द फर्स्ट डे व्हेन ह्यूमन डिसाइडेड टू फाइट विद द नेचर. And there is a rule for nature, when you fight, it fight you back. और जब नेचर आपसे इंतकाम लेती है तो बहुत ख़तरनाक होता है. एंड वी हैव ऑलरेडी ऑब्जर्व ड्यूरिंग कोविड में हमने क्या देखा? कोविड में हमने ये देखा कि तमाम इंडस्ट्रीज़ जब बंद हो गई, लोग अपने अपने घरों के अंदर महसूर हो गए. उस वक्त ओजोन जो हमने अपनी वजह से तबाह की थी, वो उसकी डिप्लीशन जो थी वो होना शुरू हो गई. ऑटोमेटिकली वो बनना शुरू हो गई. यानी इंतकाम लिया आपसे नेचर ने और आपकी पूरी दुनिया को बंद करके रख दिया. तो बिफोर कि हम अब बहुत लेट हो जाएं, हमें काम करना है, एक्शन लेना है अलार्मिंग बेसिस पे. और जब आप नेचर से लड़े थे, यानी जब आपने इंडस्ट्रीज़ बनाई, आपने फॉसिल फ्यूल को यूज़ किया, आपने नेचर को चैलेंज किया कि आप ग्रीन हाउस गैसेस क्रिएट कर रहे हैं. वी आर एट 7th नंबर इन द क्लाइमेट अफेक्टेड एरियाज़. आज भी जब हम कराची का सुबह उठ के एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करते हैं तो हमें ये शो होता है कि दैट इज़ 20 times मोर एज प्रिस्क्राइब बाय द WHO. यानी हम जिस सिटी में रह रहे हैं, हम 20% ज़्यादा क्वालिटी इंडेक्स पे रह रहे हैं. दैट इज़ कॉल्ड द अनहेल्दी सिटी. और कराची इज़ गोइंग टू बी डिक्लेयर्ड एज द वल्नरेबल सिटी अराउंड द वर्ल्ड. हमें अपनी नेचर को बचाने के लिए जो सॉल्यूशंस चाहिए वो हमें नेचर बेस्ड ही चाहिए. हम कन्वेंशनल मेथड से हटकर नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस पे काम करें. नेचर बेस्ड सॉल्यूशन में हमने अपनी ग्रीन हाउस गैसेस को, वी हैव इंक्रीज द ग्रीन हाउस गैसेस. अब हमें उसी ग्रीन हाउस गैसेस को, जिसमें ख़ास तौर पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको अब हमें स्लो डाउन करना है. और स्लो डाउन करने का जो बेस्ट मेथड है, जो की मेथड है, विच इज़ डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट, दिस इज़ द प्लांटेशन. Plantation is the method which absorb the carbon dioxide and provide you the fresh oxygen. So this is the alternative way if we want to secure with the climate change, if we want to be slow down the climate change. तो हमें अपने ज़्यादा से ज़्यादा plantation करनी है.
और एक जो ग्लोबल लेवल में पर्सपेक्टिव आता है दैट वी मस्ट हैव 25 to 40% फॉरेस्ट रेट, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर बिलो 5% फॉरेस्ट कवर इन आवर कंट्री. हमारी कंट्री के अंदर इस वक्त 5% भी नहीं है, इवन 4.5% हमारे पेपर्स में है, जबकि एक्चुअल हमारा फॉरेस्ट रेट 3.8% है. इस वक्त हम बात करें अगर पर पर्सन की, तो एक जो बहुत बड़ी फिगर हम हमेशा मिस कर देते हैं, और अक्सर हमारे स्लोगन होते हैं 1 person 1 plant. नो, दैट्स रॉन्ग स्लोगन. एक्चुअली इन आवर होल लाइफ we absorb oxygen from 8 to 10 trees. यानी अपनी पूरी ज़िंदगी में फॉर आवर सर्वाइवल हम जो कार्बन ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं वो हमारी ऑक्सीजन तकरीबन 9 से 8 से 10 ट्रीज़ के बराबर होती है. देन इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एटलीस्ट हम अपने हिस्से की ऑक्सीजन तो अपनी दुनिया में लगा कर जाएँ. यानी अगर मैं ये आज से अहद करती हूँ कि मुझे अपनी ऑक्सीजन खुद क्रिएट करनी है, इसके लिए मुझे 1, 2, 3 नहीं बल्कि मिनिमम भी 10 ट्रीज़ लगाने हैं. तो जहाँ भी हम इस तरह का कोई फोरम होता है, वी ऑलवेज ट्राई टू इंगेज ऑल द पीपल कि अगर आप इस वक्त 100 हैं और 10 ट्रीज़ लगाने का भी वादा करते हैं, इट मीन्स आपने 1000 ट्रीज़ की ओथ ले ली दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस 10 ट्रीज़ फॉर माई सेल्फ. उसके बाद आते हैं आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे. यानी अगर हम इस बीइंग अ सिटीज़न हम अगर सोचते हैं, बीइंग अ ह्यूमन अगर हम ये सोचते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली पॉल्यूशन रिड्यूस कर देंगे, हम ट्रीज़ लगाकर कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस कर देंगे और साथ साथ अपने लिए बेहतर माहौल क्रिएट करेंगे. सबसे बड़ी चीज़ पर सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो क्लाइमेट चेंज का हो रहा है वो हो रहा है हमारी एयर को. यानी वी आर कन्वर्टिंग पॉइजनस एयर, वी आर क्रिएटिंग पॉइजनस एयर, and that when we inhale, according to the literature, according to the scientific literature, 7,000 immature deaths have reported all over the world. It means कि हम 7,000 अपने जो बच्चे हैं वो हर साल सिर्फ इसलिए खो देते हैं that we are not creating the world pollution free. So being a citizen, being a human, हमें अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने एनवायरनमेंट के लिए एक छोटे से कदम की ज़रूरत है. और वो छोटा सा कदम क्या है कि अपने घर के बाहर आप 10 दरख्त लगा दें, 5 दरख्त लगा दें, ताकि आप अपनी आने वाली जनरेशन के लिए. और ये देखने में ये हमें बहुत मुश्किल काम लग रहा हो शायद कि मैं 10 दरख्त कैसे लगाऊं. तो इसका आसान सा तरीका ये है कि जब आप कोई फ्रूट खाते हैं, आप कोई वेजिटेबल आपके घरों में आती है, आप उसके सीड लेके स्प्रेड कर दें. बहुत आसान काम है. यानी वी आर द साइंटिस्ट और हम कोई बहुत मुश्किल तरीके नहीं बताते. हम क्लाइमेट से लड़ने के लिए आपको तैयार करते हैं विद नेचर बेस्ड सॉल्यूशन. ये एक नेचर है हमारी, बीइंग अ ह्यूमन हमारी एक फितरत है. हम हर चीज़ को खाते हैं और अपने घर के बाहर फेंक देते हैं. तो आज से ये हम कि अगर ये अपनी हैबिट बना लें सिर्फ 3 काम की, कि हमें जो भी कचरा है उसको हमें क्लीन करना है जस्ट बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन. हम जो कुछ खाएंगे उसके सीड्स को हमें डंप नहीं करना, उसके सीड को हमें ग्रो करवाना है. नंबर 3, रोज़ाना 1 बॉटल पानी आपको देना है. दिस इज़ द ईजीएस्ट वे टू सर्वाइव इन योर कंट्री, टू सर्वाइव इन नेचर, if we want to mitigate with the climate change. जहाँ तक हम मैंग्रोव्स की, ओके ठीक है, and if we discuss about the mangroves हमारे कोस्टल फॉरेस्ट हैं और
अब अगर मैं आप लोगों में से किसी से पूछूं हाउ मेनी पर्सन लिसनड अबाउट मैंग्रोव्स, तो आई थिंक एनीवन नोज अबाउट मैंग्रोव्स हियर? एनीवन नोज अबाउट मैंग्रोव्स? दीज आर द कोस्टल फॉरेस्ट। और हम अपने जंगल देखने के लिए, अपने जंगलात को देखने के लिए हम नॉर्दर्न एरियाज़ जाते हैं। नॉर्दर्न एरियाज़ के फॉरेस्ट, एवरीवन नोज अबाउट द नॉर्दर्न फॉरेस्ट, बट आई थिंक नो वन नोज अबाउट द कोस्टल फॉरेस्ट। कोस्टल फॉरेस्ट अगर आपको देखना है दैन यू मस्ट कॉन्टैक्ट विद द क्लाइमेट हब फोरम, दैन वी विल टेक यू देयर एंड वी विल गाइड you there what to do and how to do. I think now I'm going to over to Humaira because time is very limited and I don't want to waste the time. But just take one oath that everyone should plant at least 10 trees in their whole life. Thank you very much. Thank you so much for your information. And now I would like to I would like to thank Karachi Bar Association, and I'm very grateful to Advocate Amir Nawaz Baraish, President Karachi Bar. Thank you, sir, for coming. I hope I'm not taking it wrong. General Secretary. Okay. And Advocate Mohammad Ghulam Rahman, General Secretary Karachi Bar Club. And special thanks to Advocate Farooq Nawaz Gandapur. And उनकी तवसुत से हम यहाँ आए हैं और हमने आप लोगों के साथ कनेक्ट किया है. Thank you, sir, for inviting us. And I would like to invite you on stage कि आप प्लीज़ आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें. और ये हमारे क्लाइमेट हब के जो हैं लीगल डायरेक्टर भी हैं. अस्सलाम वालेकुम. आवाज़ के लिए सही. अस्सलाम वालेकुम. फर्स्ट प्रेसिडेंट कराची बार एंड जनरल सेक्रेटरी कराची बार, विद थैंक्स अ लॉट कि इन्होंने हमें परमिशन दी और हम इस प्रोग्राम को पाए तकमील पहुंचाने के लिए, और ख़ासकर अपनी लीगल फ्रेटर्निटी को मैं वेलकम करता हूं कि वो आए, उन्होंने अपना टाइम निकाला. तो आमिर वड़ैच साहब को मैं कहूँगा कि वो आके प्रेसिडेंट कराची बार अपने ख़यालात का इज़हार करें और क्लाइमेट चेंज पर कुछ अवेयरनेस दें. रहमान कुरैशी साहब, जनरल सेक्रेटरी कराची बार, मैं उन्हें दावत दूंगा कि वो आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें. Thank you so much, Climate Hub Forum. I warmly welcome all the esteemed guests, ladies and gentlemen, and my esteemed members of the bar. As we were approached by Farooq Nawaz Gandapur Saab and Amir Sadozi Saab, who is the co-founder, and I came to know that Farooq Nawaz Gandapur Saab is also legal advisor. On behalf of Karachi Bar Association, I would like to appreciate the efforts of Amir Sadozi, Farooq Nawaz Gandapur Saab, Madam Iram Khan, Chairperson, Dr. Kaval Nizam Sahiba, she is the President of SEMP, Dr. Muhammad Uzair Khan Saab, who is General Secretary of SEMP, and also we have an esteemed guest, Mr. Muhammad Tahir Ansari Saab, who is the Chairman of Al Khair Trust. Sir, I welcome all of you on behalf of Karachi Bar Association, and with a promise that the Karachi Bar Association is going to collab with you, and we will definitely anticipate to play our role as in to advocate these issues, because in my personal opinion, the climate change is not a far threat for the community or the society we are living in. It is a grave threat, and which requires our attention to play our individual role, whether it comes to for the plantation of trees, if there is any issue related to the industrial
or the pollution which came out of the traffic right now, this is our society, this is our country. We have to not only anticipate but actively take measures so that the environment around us would reflect that as a member of the society we have done something for the future generations who have to live in a clean environment. And I believe that being a general secretary of the Bar Association, we have to appreciate a judgment of Sheila Zia, which was passed in 2009, that the right to life means that you should have all the necessities with the clean air and environment. Following those directions, I think this is incumbent upon the Karachi Bar Association to not only appreciate but collab and also stand with you in the future plans if there are any. Inshallah, along with my cabinet, in which Mr. Amiz Nawaz Warai Sahib, being a president, he is present. Imran Aziz Sahab, he is a joint secretary. Mr. Shabrani, Amjad Ali Shabrani Sahab, he is the chairperson of media and accounts committee. Shiraz Ali Shar Sahab, he is a chairperson of disciplinary committee. Cabinet assures that in future if there is anything, we will be there to help you out. And I appreciate few initiatives which I have gone through, that every year the death ratio is 1,28,000. That is also grave. Due to climate change, if we are losing human beings, then it is again an important call for us as a human being that we should help you out. And I appreciate that the Climate Hub Forum has taken an initiative to plant 1 million trees, also included mangroves on the coastal belt of Balochistan and Sindh. I believe this is the most important initiative taken by you, and I hope so the provincial government will help you out in this. And there are many forums out there who can universally, they can aid you, and with a hope that people like you or forums like you, if they think like this, they can actually implement the Environmental Act passed by the Parliament. And if there is any hindrances to the extent of advocacy, Karachi Bar Association can also play their role and pave a way forward to help you in these initiatives. Thank you so much. With this, there are a lot of prayers for the Climate Hub Forum and the people like you who work for the humanity, who work for the society. I'm sure programs like this in future as well, if any, in collaboration with Karachi Bar Association, can help us out to deliver the message across the board. Thank you so much. थैंक यू मिस्टर जनरल सेक्रेटरी रहमान कुरैशी साहब. अब मैं दावत दूंगा प्रेसिडेंट कराची बार आमिर नवाज वड़ाई साहब को कि वो आएँ और आके कुछ अपना अल्फाज से खिताब. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं फ़ारूक नवाज़ गंडापुर भाई, सीनियर एडवोकेट सलीम साहब और तमाम दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने आज इस इम्पोर्टेंट इशू पे ये प्रोग्राम या सेमिनार जो भी के ऑर्गेनाइज़ किया है. मैं ये कहूँगा कि क्लाइमेट चेंज में जो इस टाइम पे स्पेशली रिस्पॉन्सिबल है पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पे कराची की अगर बात करूँ तो वो गवर्नमेंट है, क्योंकि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कोई तरतीब ही नहीं है. जिसका जहाँ दिल चाह रहा है घर बना रहा है, जितनी हर बंदा अपनी सोसाइटी में अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गलियाँ बना रहा है. कोई 2 फीट बना रहा है, कोई 4 फीट बना रहा है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है. फिर लोगों के पास रहने की जगह ही नहीं है. ज़मीन गवर्नमेंट जो है लैंड माफिया को, चाहे वो बैरिया टाउन हो, चाहे वो वहाँ पे DHA फेज़ 5 हो, 6 हो, 7 हो, उनको तो वो कोड़ियों के भाव में देकर उनको खुली खुली जगह देते हैं जहाँ पे वो दरख्त भी लगाते हैं, जहाँ पे वो
शाहराएँ भी बड़ी बनाते हैं, लेकिन आम शहरी को वो नहीं दिया जाता। मेरे ख़्याल से गवर्नमेंट को ये जो लैंड्स पड़े हुए हैं, और बजाय ये कि इन सोसाइटीज़ को बांटने के कोड़ियों के दाम, इनको ये आवाम को देना चाहिए और हर बंदे को एक प्रॉपर सोसाइटी के तहत, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत देनी चाहिए, ताकि लोग, ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि हर बंदे को अपना घर दें। अब वो एक तो अपनी बेसिक ज़िम्मेदारी से फेल है, लोगों को उनका घर दे नहीं पा रहे, फिर जिन लोगों को दे रहे हैं कोड़ियों के भाव वो इतना महंगा देते हैं कि लोग उनको ले नहीं सक रहे हैं। तो अगर हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करेंगे और उसकी इम्प्रूवमेंट के बारे में बात करेंगे, तो इसकी सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी जो है वो हमारी गवर्नमेंट पे आती है। आम शहरी कैसे करेगा उसको? इस टाइम पे अगर छोटी छोटी गलियाँ हैं, वो दरख्त लगाएंगे भी, तो आपको पता है कि दरख्त, अच्छा दरख्त जो होगा, जो क्लाइमेट चेंज करने में, जैसे पीपल का, बीड़ का, कोई और जो नीम का, ये वो दरख्त हैं जो बड़े होते हैं, जिनकी शाखें फैलती हैं। बोड़ का, ये वो उन दरख्तों के लिए बड़ी जगह चाहिए। अब एक गली में कैसे आप नीम का दरख्त लगाएंगे, या आप कैसे बोड़ का दरख्त लगाएंगे, कैसे आप पीपल का दरख्त लगाएंगे? इसके लिए आपको एरियाज़ चाहिए। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क करे और प्रॉपरली चीज़ों को बनाए, ताकि लोग जौन सा है उस पे अमल दरामद कर सकें, या लोगों को ये क्लाइमेट से जौन सा है नुकसान कम से कम हो सके। इसमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट भी है, लेकिन फिर से वही बात आएगी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट उस वक्त काम करेगा जिस वक्त आपके पास प्रॉपर जगह भी तो हो। अब अगर एक फ़्लैट है, उस फ्लैट में, हमारे पास ऐसे भी फ्लैट्स हैं, अगर आप देखेंगे तो उसमें 30-30, 40-40 हज़ार की आबादी रह रही है। अब अगर एक जगह 40 हज़ार की आबादी रह रही है और वहाँ पे आप दरख्त किधर लगाएंगे? वहाँ तो दरख्त नहीं लग सकते, वहाँ पे तो चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती, तो फिर कैसे चीज़ें चलेंगी? तो हमें सबको मिल के गवर्नमेंट पे स्ट्रेस करना चाहिए कि ये जो आप 1 लाख एकड़ ज़मीन बांट रहे हैं, 50 लाख एकड़ बांट रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? ये आम आवाम को दे दें, आम आवाम को घर के लिए जगह दें, ताकि वो सब और एक प्रॉपर मैकेनिज़्म के तहत दें। तो एट द एंड मैं अगेन जो क्लाइमेट चेंज से रेलेवेंट हमारे जितने भी स्पीकर्स आए हैं, गेस्ट आए हैं, मैं उन सब का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने अपना कीमती टाइम निकाला और वो कराची बार एसोसिएशन में आए और एक अवेयरनेस सेशन किया। और जहाँ पे भी उनको हमारी ज़रूरत होगी, हम ज़रूर उनके साथ खड़े होंगे, चाहे वो लीगल वे में ज़रूरत हो, चाहे वैसे एक समाजी तौर पे ज़रूरत हो, हम अपना रोल प्ले करेंगे। बार एसोसिएशन हमेशा समाज के लिए काम करती है, इंसानियत के लिए काम करती है, तो हम अपना वो रोल प्ले करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने चाहा जो भी हो, इसमें बाकी जौन सी चीज़ें हमारे अभी 1000 हमने बात की है जे CPK वालों से, चीफ़ ऑफ पाकिस्तान, चीफ़ पुलिसिंग कराची से, वो हमें 1000 दरख्त दे रहे हैं। हम आपसे चाहेंगे, चूँकि आप एक्सपर्ट हैं, आप यहाँ पे आएँ, हमें निशानदेही करें, पॉइंटेशन करें कि ये 1000 दरख्त हम किस किस जगह पे लगाएं। आपकी सुपरविज़न में लगेंगे, हम लगाएंगे तो हम ऐसी लाइन से लगाते जाएंगे, लाइन से, लेकिन अगर आप लगाएंगे तो किसी विज़न से लगाएंगे, तो आपकी हमें मदद दरकार होगी। तो हम फ़ारूक भाई, सलीम भाई, दूसरे दोस्तों के ज़रिए आपसे कहेंगे कि जब दरख्त आएँगे आप हमें हेल्प आउट करें। थैंक यू सो मच। मिस्टर प्रेसिडेंट, बहुत शुक्रिया, और आपकी कैबिनेट का शुक्रिया कि इन्होंने टाइम दिया वंस अगेन, क्योंकि आपने दूसरे प्रोग्राम भी अटेंड करना था, इसलिए टाइम शॉर्टली की वजह से मैंने आमिर नवाज़ वड़ाइच, प्रेसिडेंट कराची बार, जनरल सेक्रेटरी रहमान कुरैशी साहब, ठीक है, मेरी एक रिक्वेस्ट है आमिर भाई से कि एक पिक्चर काइंडली अगर हम ले लें। The program is continued. Just because that the President Saab has to go, so just a 5 minutes break for the photo session, please. Thank you so much, the President and the Secretary. We would like to have some pictures with you. भाई फोटोग्राफर साहब, आप एडजस्ट कर लें, तस्वीर आपका आर्ट का नाम
Token of appreciation. हम एक और ग्रुप पिक्चर ले लेते हैं, आप अपना कैमरा दे दो. हाँ, वी नीड वन मोर पिक्चर प्लीज विद आवर टीम. ये भी ले लो यार, इससे भी ले लो. हाँ. रुक जाए, बैठ जाए. बैग यहाँ है. बैठ जाए. सबको बैठ यहाँ आगे आ जाइए. Is Dr. Mohammad Uzair Khan. He is expert on mangroves and coastal Dr. Uzair, are you here? Sir, please share your views. Assalamu alaikum. Dr. Uzair here. Please, I want you to please be seated. क्लाइमेट चेंज के हवाले से आज बात हो रही है और इस वक्त आप सब ने देखा कि यहाँ पर मिस इरम ख़ान जिन्होंने काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू की, उसके बाद एक्सपर्ट की राय भी आपको मिली जिसमें डॉक्टर कमल नाजिम ने इसके सारे कॉन्सिक्वेंसेस बताए और इसके रीजंस और उसके सॉल्यूशंस पर भी बात की। अगरचे आप ये बात मैं जानता हूँ कि आप लोग और अब हमारे यहाँ किसी को भी इस चीज़ से नावाक़फ़ियत नहीं होगी कि क्लाइमेट चेंज है क्या और इसके असरात क्या हो रहे हैं और इसके रीज़न्स क्या क्या हैं। यकीनन इसके रीज़न्स यही हैं जो हमारी तरक्की है। हमने जब अपनी तरक्की की यानी कि डेवलपमेंट की, इंडस्ट्रीज़ लगाईं,
हमने हाई राइज बिल्डिंग्स बनाई, यहाँ तक कि पूरे शहर को कंक्रीट का जंगल बना दिया और यहाँ जितनी भी सड़कें थीं वो पक्की कर दी। और इसके साथ साथ यहाँ तक भी हमने नहीं छोड़ा, बल्कि सड़कों के दरमियान में जो ग्रीन बेल्ट थी, हमने कहा क्यों ना इसको भी इस्तेमाल में ले लिया जाए और नेचर को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो क्या किया गया कि जो ग्रीन बेल्ट, 2 रोड्स के दरमियान में ग्रीन बेल्ट थी, उसको भी हमने कहा कि जी यहाँ पर एक और ट्रैक बनाया जाए और उस पर हम ग्रीन बस चलाएंगे। तो जो रही सही कसर थी वो भी पूरी कर दी गई। इसके अलावा जब इस शहर में इतनी आबादी बढ़ गई और रहने की जगह नहीं बची, तो फिर हमने क्या किया, जो एक मखसूस जंगल थे कराची के अंदर, मैंग्रोव फॉरेस्ट, उन मैंग्रोव फॉरेस्ट को भी काट कर हमने वहाँ भी रहायशी स्कीम्स बना दी। इसकी मिसाल आपके सामने डिफेंस फ़ेज़ 8 की है, और ये तो पुरानी बात हो गई। इसके बाद आपके सामने जो एक न्यू हाई राइज बिल्डिंग बनाई गई वो थी इमार के नाम से। मैं नाम इसलिए लूँगा कि वो सबके सामने मौजूद है, और अब इमार भी सिर्फ वहीं पे रोका नहीं ये प्रोजेक्ट, बल्कि अगर आप इसमें गौर करें, देखें जाके, तो ये इमार का प्रोजेक्ट मज़ीद समंदर के अंदर इसको बढ़ाया जा रहा है और वहाँ भी हाई राइज बिल्डिंग्स बना दी जाएंगी। तो ये हम किस डगर पे जा रहे हैं, हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि नेचर अपना हिसाब ज़रूर पूरा करती है। आज हम समंदरों को चीर कर आगे जा रहे हैं। जो खुदा ने हमें जंगलात मैसर किए थे, जो अता किए थे, मैंग्रोव फॉरेस्ट, जो कि कोस्ट लाइन पर एक सोल्जर का काम करते हैं, हमने क्या किया, हमने उनको भी काट कर वहाँ भी रहना शुरू कर दिया, वहाँ रिहायशी स्कीम बना दी। लेकिन एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा, और मैं इस चीज़ से आपको डराना भी चाहता हूँ कि सी लेवल राइज भी क्लाइमेट चेंज का एक कंपोनेंट है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग एक कंपोनेंट है। और ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही आगे चलकर आप ये देखेंगे कि हमारा सी लेवल राइज होगा। उसकी वजह क्या है कि हमारे ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं। ग्लेशियर्स जब पिघलेंगे तो वो सारा पानी हमारे समंदरों में आएगा, लेकिन ये प्रोसेस इतना स्लो होता है कि आम तौर पर ये नज़र नहीं आता। लेकिन अगर आप केटी बंदर का दौरा करें तो उसकी हिस्ट्री देखें तो आपको पता चले कि केटी बंदर जो पहले हुआ करता था, वो 2 केटी बंदर समंदर बुर्द हो चुके हैं, ये तीसरा केटी बंदर है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि नेचर से लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि नेचर को सपोर्ट करना चाहिए। और इस वक्त चूँकि हम मौजूद हैं यहाँ पर वकला बरादरी में, तो मेरी दरख्वास्त ये होगी आमिर साहब से कि क्यों ना वकला का एक पैनल तैयार किया जाए, जो कि हमारे यहाँ जो लैंड ग्रैबिंग हो रही है, जो फॉरेस्ट को कि काट कर उसके ऊपर कब्ज़ा किया जा रहा है, कब्ज़ा माफिया आ रहा है, हम क्यों ना इस प्रेशर को आगे बढ़ाएं। और इसके साथ साथ जो कंसर्न डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि सीपा का डिपार्टमेंट, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम इसी फोरम को आगे लेकर चलें। जो इंडस्ट्रीज़ जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रही हैं, इंडस्ट्रीज़ ये जो हमारे यहाँ तरक्की का ज़रिया समझी जाती हैं, आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि अगर इंडस्ट्री की चिमनी से काला धुआं नहीं निकलेगा तो क्या प्रोडक्ट तैयार नहीं होगी? यकीनन होगी। क्या इंडस्ट्रीज़ की जो इफ्लुएंट है, अगर ये ट्रीट करके इसको डिस्चार्ज किया जाएगा समंदर में, जिसके के मुज़िर असरात नहीं होते, तो क्या प्रोडक्ट तैयार नहीं होगी? क्या हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा? यकीनन कर सकता है। लेकिन हमारे पास, अच्छा दूसरी बात यह है कि हमारे पास कवानीन सारे मौजूद हैं। बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की, तो मैं जिस प्रेशर ग्रुप की बात कर रहा हूँ वो वकला का एक ऐसा प्रेशर ग्रुप हो जो कंसर्न डिपार्टमेंट को भी प्रेशराइज करे, ताकि उन इंडस्ट्रीज़ को, उन लैंड ग्रैबर्स को काबू किया जा सके और हमारे जो नेचर है उसको हम सेव कर सकें। बहुत शुक्रिया।
Thank you so much. Now I would like to call Advocate Nadeem Azhar. Just 2 minutes, sir. We have just short of time, and I would like you to share your expertise. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कराची बार एसोसिएशन के तमाम वकला को खुशामदीद कहता हूँ और सबसे पहले ये जो NGO जो आज काम कर रही है क्लाइमेट्स के सिलसिले में, मैं इन्हें अप्रिशिएट करता हूँ। अभी मेरे एक फाजिल बड़े अच्छे दोस्त ने बड़ी अच्छी डिस्कस की है, बड़ा अच्छा उसने बाकायदा क्लाइमेट्स के बारे में डिस्कस किया। KB मंदर और क्लाइमेट्स के बारे अम्मार जो हमारे साहिल समंदर के करीब बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो चुकी है, समंदर को काट के जिसमें बिल्डिंगों को बनाया जा रहा है, ये चीज़ें गलत हैं। हमारी क्लाइमेट्स हमारा बहुत बड़ा असासा है और इस सिलसिले में हम आपके साथ हैं। और कराची बार के प्रेसिडेंट जनाब आमिर वड़ाई साहब इससे पहले तकरीर कर चुके हैं और बाकायदा अपनी एफ़र्ट आपको बता चुके हैं। ये एक टीम बनाएंगे, हम भी उस टीम का हिस्सा होंगे इंशाअल्लाह ताला। आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। मैं बहैसियत अल्लाह के फजल व करम से लाहौर बार में अपनी एज ए सेक्रेटरी खिदमत अंजाम दे चुका हूँ। आप मुझे किसी भी प्लेटफार्म पर लाएंगे, आपके साथ मैं चलने के लिए तैयार हूँ। यकीन कीजिए मुझे इतना अच्छा मज़ा आ रहा है कि इस वक्त क्लाइमेट्स जो पब्लिक में आ चुकी है, लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। यकीन कीजिए आप जगह जगह जाके हॉस्पिटल में जाकर देखें कि इस वक्त 95% लोग दमे की बीमारी में, सांस की बीमारी में, यानी कि एक वक्त ऐसा था कोविड-19 के सिलसिले में हर आदमी मास्क लगा के चलता था, लेकिन अभी भी कोविड-19 को तो हमने पीछे कर दिया है, लेकिन अभी भी हर आदमी मास्क लगा के चल रहा है क्योंकि क्लाइमेट्स हमारे दिलों में, हमारे जहनों में बस चुका है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आपकी NGO, आपकी एसोसिएशन इस सिलसिले में खड़ी है। मैं इन्हें अप्रिशिएट करता हूँ। मेरी बहैसियत एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, आप मुझे जहाँ कहेंगे मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अब जो मैं इनवाइट कर रही हूँ हमारे एक सीनियर एडवोकेट सैयद सलीम अहमद साहब, जो कि बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है इनकी इस फील्ड में, and you have been working a lot for social services and community services, and I would like to invite and welcome you here to share your views. Thank you, sir. बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो मैं ये वजाहत कर दूं कि मेरा यहाँ मकसद उन्वान कोई तकरीर करना नहीं है और ना ही मैं इसके तकनीकी मामलात पर बात करूँगा, क्योंकि उस सिलसिले में हमारी जनरल सेक्रेटरी इरम खान साहिबा ने और डॉक्टर कंवल साहिबा ने और डॉक्टर उज़ैर साहब ने बड़ी सैर हासिल बात कर ली है। लिहाजा उन्होंने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी कि हम कवानीन की और तमाम दूसरी बात करें, लेकिन अगर आप तवज्जो दें मेरी जानिब तो मैं अपने दिल की बातें ज़रूर करूँगा और जो आपको गौर करनी होंगी। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को ये बताऊं कि अपने 40 साल यहाँ वकालत के प्रैक्टिस के दौर में पहली मर्तबा मैंने देखा है कि बार ने एक ऐसे अछूते मौजू के ऊपर जो है इसका इंतज़ाम किया है और ख़ास तौर से हम इसमें शुक्रिया अदा करते हैं इरम साहिबा का, आमिर नवाज़ का और गंडापुर साहब का कि उन्होंने इसका एहतमाम किया। आज का मकसद ये नहीं था कि हम उसके तमाम तर तकनीकी पहलुओं पर गौर करें, बल्कि सिर्फ ये था कि एक आगाही लोगों को हासिल हो जाए। और मैं समझता हूँ कि हमें जो प्रेशर ग्रुप की बात हो रही है उसमें एक ये भी होना चाहिए कि हमारे प्राइमरी के निसाब में और कॉलेज के उसके निसाब में ये मौजू शामिल होना चाहिए। ये हमारी आने वाली नस्लों के ऊपर जो है एक एहसान होगा और वो हमें समझेंगे। मैं समझता हूँ कि इतना ही काफ़ी है। और फिर मैं एक मरतबा रोटरी के तमाम और इरम साहिबा का, डॉक्टर कमल का और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो उन्होंने इसका एहतमाम किया और हम वकरा बरादरी को इससे आगाह करने के लिए बड़ा एहतमाम किया। आमीन। Thank you so much. Okay. Tahir Ansari. I would like to call Tahir Ansari साहब here कि प्लीज़ आप आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार कीजिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, मौसमियाती तब्दीलियों पर और उनकी चैलेंजों पर काफ़ी गुफ्तगू हुई। मैं सबसे पहले कराची बार एसोसिएशन और ख़ुसूसन यहाँ की इंतज़ामिया, अमीर सदोज़ई साहब, फारूक गंडापुर साहब और इनकी पूरी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने अपना कीमती वक्त आज मौसमियाती तब्दीली के हवाले से इस प्रोग्राम को दिया और हमें मदऊन किया है। मैं मुख्तसर से आपसे एक सीधी सादी 2-3 गुजारिशात करूं कि अल्हम्दुलिल्लाह वकला बिरादरी जो हमें हर मौके पर रास्ता दिखाते हैं और हमारी रहनुमाई फरमाते हैं, कौम और आवाम के हर दर्द और दुख में शरीक होते हैं। इन्होंने आज एक ऐसा जानिब तवज्जो दिलाने की कोशिश की है, जद्दोजहद की है कि यकीनन ये इनकी मसरूफियात से बढ़ कर के है। मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा सा, अल्हम्दुलिल्लाह आप हर एक बंदा कौम का अजीम सरमाया है। मैं एक छोटा सा मिसाल दे रहा हूँ। अल खैर ट्रस्ट अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 24 साल से डिज़ास्टर पे काम कर रहे हैं और मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में काम कर रहे हैं, 36 डिपार्टमेंट में। लेकिन गुज़िश्ता 2 साल से हमने कराची की ग्रीन और क्लीन के मौजू पर भी काम शुरू किया था, और वो इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ हम तर में जावे काम के लिए, KPK जावे, गिलगित जावे, बलूचिस्तान के पहाड़ों में जाएं, वहाँ जो भी कुछ हो तो हमें कराची का वहाँ हॉस्पिटल मिलेगा और कराची की मदरसा मिलेगा, कराची का वहाँ कुआं मिलेगा, पानी का बंदोबस्त होगा। उस गरीब बस्तियों में हमने ये सोचा कि हम कराची को क्या तोहफ़ा दे सकते हैं कि कराची हर पहाड़ी में, हर वादी में मौजूद होता है। वहाँ से फिर हम जब यहाँ आए तो हमारे दोस्तों ने हमें एक पेशकश की। मैं आपको एक बात कहूँ और ये प्रैक्टिकली कह रहा हूँ, कोई दावे नहीं है, जिसमें हम 4 बंदे मिलकर हमने मशवरा किया, जिसमें डॉक्टर खालिद महमूद साहब और मलक रब्बानी साहब और हमारी मैडम डॉक्टर कंवल साहिबा और एक खाकसार ये हाजिर थे। इस 4 बंदों ने 2 साल मिलकर 2 साल पहले फरवरी में हमने काम शुरू किया था। और हम आपको एक मोटे मोटे जगह बता दें जिस पे हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं कि हमने लियारी नदी से शुरू कर दिया है। लियारी नदी में आज भी आप देख सकते हैं, हम आपको दावत देते हैं कि लियारी नदी में सबसे पहले हमने वहाँ पे हज़ारों टन कचरा वहाँ से उठवाया डैम्पर और लोडरों के ज़रिए। उसके बाद हमने वहाँ पे पौधे लगाना शुरू कर दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल में, आप यकीन न करें तो ख़ुद जाके देख ले, 2 साल में वो दरख्त जो है मणिपुर के पुल से लेकर 1.5 किलोमीटर तक आपको 22 फुट दरख्त आपको नज़र आएंगे। इसके अलावा अगर आपने कभी मुर्तज़ा चौरंगी से लेकर दाऊद चौरंगी तक सफ़र किया हो, आज आप वहाँ जाके देख ले, वहाँ पे हमारी प्लांटेशन शुरू है जिसमें तकरीबन 15,000 की लिमिट है और लियारी में हमने 22,000 मुकम्मल कर दिए हैं। आप किसी भी टाइम जो है आप जा सकते हैं। और इसी तरीके से इस 2 साल में इस 4 बंदे ने मिल कर के 33,000 दरख्त लगा चुके हैं। तो लिहाजा मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक अदना दर्जे की शेरी अगर कुछ इरादा कर ले और वो कुछ कर सकते हैं तो आप हज़रात तो माशाल्लाह माशाल्लाह सब कुछ कर सकते हैं।
हमें आपकी तवज्जो चाहिए और हम आपको दावत देते हैं कि अगर इस 4 बंदों के साथ एक बार एसोसिएशन भी मिल जाए और ये 5वां मिल जाए तो इंशाअल्लाह ताला हम आपके हर किस्म के सपोर्ट करेंगे। आपकी सिर्फ हमें रहनुमाई चाहिए, किसी किस्म के हम आपको ज़ामत भी नहीं देंगे, कचरा भी हम उठाएंगे, दरख्त भी हम लगवाएंगे, कड़ा भी हम बनाएंगे इंशाअल्लाह। और दरख्त लगाना आसान है, दरख्त का फालना मुश्किल काम है। हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरा टीम लगी हुई है जिस पे दिन में भी चौकीदारी, रात में भी चौकीदारी। और लारी नदी की मणिपुर पुल से लेकर सोराबगोट तक 1,25,000 दरख्त की निशानदेही हमने किया है। तो लिहाजा हम आपको दावत देते हैं, किसी भी टीम आप आकर हमारी प्लांटेशन को देख लें। लारी नदी पे और कोरंगी में, क्लिप्टन में, गडाप टाउन में हमारी प्लांटेशन शुरू है। हम आपको शिरकत की दावत देते हैं। बाकी रहा, अब्दुर्रहमान साहब ने कहा था कि हम यहाँ पे भी प्लांटेशन करना चाहते हैं, दरख्त लगवाना चाहते हैं। आपके कोर्ट में जो भी दरख्त आपको ज़रूरत पड़े आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम आपके दरख्त लगाने में मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। तो लिहाजा मैं आपका आज बहुत ही इंतहाई खुशी हुई है कि आप जैसे तबके ने भी इस तरफ तवज्जो दी। तो इंशाअल्लाह ताला हम इस कराची को ग्रीन और क्लीन करके दिखाएंगे। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ रहें। इंशाअल्लाह ताला हम कराची को साफ़ सुथरा करेंगे। एक बात की गुजारिश ये है कि इस कचरे उठाने में यकीनन गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ग्रीन बनाने में गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है। हम ग्रीन बना सकते हैं, आप भी ग्रीन बना सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला जो हमसे हो सके और आपसे हो सके इस कराची को सरसब्ज़ और शादाब बनाएंगे। जज़ाकल्लाह, मेहरबानी, नवाजिश। जज़ाकल्लाह मोहम्मद ताहिर साहब, अल्लाह ताला आपकी काविशों को कबूल करें। ये बताती चलूँ कि सर जो हैं वो कन्वीनियर FPCCI सेंट्रल कमेटी ऑन रूरल एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट पे भी बहुत काम कर रहे हैं। और आज आपने कहा कि हम मिल के पौधे लगाएंगे यहाँ बार में, तो इंशाअल्लाह आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी टू रेज़ योर हैंड्स एंड नेक्स्ट टाइम वी विल ऑल टुगेदर कम हियर एंड प्लांट ट्रीज एट द बार प्लीज़। ऑल द जजेस, all the advocates, हेलो, नेक्स्ट वीक हम आ रहे हैं इंशाल्लाह आपके पास। अच्छा, नाउ आई वुड लाइक टू कॉल आवर वाइस प्रेसिडेंट आमिर Sadozoi, प्लीज़ कम एंड हैव योर व्यूज़ ऑन द इवेंट। पहले आवाज़ आ रही है? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, मैं कराची बार का बेहद दिली मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें बहुत इज़्ज़त बख्शी, स्पेशली हमारे जो बार के कैबिनेट के जो जितने मेम्बरान हैं, जितने भी हमारे वकला बैठे हैं यहाँ पे, और फ़ारूक नवाज़ गंडापुर साहब का मैं बेहद दिली मशकूर हूँ जिन्होंने ये तमाम अरेंज किया। और बेसिकली असल में ये है कि आज जो था ये हमारा एक अवेयरनेस सेशन कह लें इसको, या सेमिनार कह लें इसको, चूँकि ये एक वक्त की ज़रूरत है। और आज आप सबको ही मालूम है, मैं असल में लंबी चौड़ी कोई बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारी पॉइंट्स हैं और तमाम माशाल्लाह यहाँ पे जो है इंटेलेक्चुअल बैठे हुए हैं। तो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, एवरी सेकंड इज़ अ लर्निंग प्रोसेस। तो मुझे और हमें आप सब को सबसे सीखना है, आपके एक्सपीरियंसेस से सीखना है। और उसके साथ साथ मैं ये कुछ चीज़ें कुछ एक दो बातें मैं ज़रूर कहूँगा, चूँकि एक हमारा एक ताल्लुक़ एक एसोसिएशन से भी है, हमारा प्रोफेशन भी है और अभी वक्त की ज़रूरत है। चूँकि हम अगर देखें क्लाइमेट चेंज के हवाले से सिंध में देख लें, बलूचिस्तान में देख लें, जो आफ्टर फ्लड जो सिचुएशन क्रिएट हुई क्लाइमेट उसकी अमवात के हवाले से, वो बेसिकली क्या था, वो मैं उसको ये पर्सनली समझता हूँ कि देखिए एक चीज़ तो होती है जो अल्लाह पाक की तरफ से होती है, ठीक है, अब सब करने वाला अल्लाह की ज़ात है, बट इंसान जो है यहाँ पे, जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कुछ पॉइंट आउट किया कि जब हमारे पास लॉज हैं, लॉज बने हुए हैं बट उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है।
हम मुख्तलिफ़ जगहों पे एक कंजस्टेड सा हम जगह बना लेते हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें क्रिएट होती हैं, ये मसले आ जाते हैं फिर। तो बेसिकली आज जो आपके पास आने का मकसद था, हमारा ये सेशन का मकसद था, चूँकि हम इस पे बिलीव करते हैं कि हम जब मिल जाएं, चूँकि ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है, इस प्लेटफॉर्म से हिस्ट्री है, इस प्लेटफॉर्म से अपना बार एसोसिएशन से या हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं जिनको हम वकला कहते हैं, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो वंडर्स कर सकता है। तो उसमें मैं ये चाहता हूँ कि हम ज़ाहिर है हमने एक दूसरे से हाथ भी मिलाया है, एक क्लाइमेट हब फोरम के हवाले से कराची एसोसिएशन बार के साथ। तो मैं ये चाहता हूँ कि तमाम हमारे वकला जो हैं वो एटलीस्ट ये है कि तमाम अवेयरनेस के हवाले से और इस प्लेटफॉर्म को और स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ हम तमाम उन चीज़ों के ऊपर नज़र रखें, और चाहे वो गवर्नमेंट के हवाले से है, कोई गवर्नमेंट पॉलिसी है, कुछ इम्प्लीमेंटेशन है, उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये आगे लेके चलें। और उसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जितने भी हमारे स्पीकर्स आए हैं, और हमारा तो ऐसा है कि जैसे अभी ताहिर साहब ने फरमाया और डॉक्टर साहिबा ने और डॉक्टर उज़ैर साहब ने फरमाया कि ज़ाहिर है आप जब एक चेन बनती है, एक टीम बनती है, तभी ये पॉसिबल होता है। ये क्लाइमेट चेंज मेरा अकेले का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हम सब का एक मसला है, एक राइट है। हम एक इस चीज़ के ऊपर हम आवाज़ उठाएं और आगे बढ़ के मिल के और एक हाथ होके हम गवर्नमेंट के साथ एक पॉलिसी में उनकी शरीक हों, एटलीस्ट इम्प्लीमेंटेशन में हों, इंफ्रास्ट्रक्चर में हों, एटलीस्ट हम अपने माहौल को और आने वाली नस्ल को एक अच्छा बेहतर मुल्क दे दें, बेहतर जगह दे दें रहने के लिए। मैं इस पे ख़त्म करूँगा। बहुत शुक्रिया आप सबका, एक दफ़ा फिर दिल की गहराइयों से आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, बहुत शुक्रिया। Thank you so much everyone, and I would like to thank especially all the experts, all the guests and all the audience who are sitting here was part of the awareness sessions। and जहाँ मैं समझती हूँ कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पे एक environment पे एक session हुआ है। So thank you so much for coming and attending this program, and see you soon inshallah। Next month we are coming here for a plantation drive, जैसे हमने सर ने कहा है। और ये सिर्फ हमारा एक मिशन नहीं है, ये हम सबका मिशन है। हम क्लाइमेट एडवोकेसी प्रमोट तो कर रहे हैं, लेकिन हमें रियल टाइम एडवोकेट चाहिए कि हम मिलके एक पॉलिसीज़ बनाएं, क्योंकि अब जो माहौल बन रहा है और क्लाइमेट में जो ये ड्रास्टिक चेंज आ रहे हैं ओवरऑल ग्लोबली एंड लोकली, तो बेहतर है कि हम अपने घर से स्टार्ट करें, अपने कराची से स्टार्ट करें, अपने मुल्क से स्टार्ट करें। सो थैंक यू सो मच, एंड I think we should start this chain, and you have to be part of this mission जो हमने शुरू किया है। Thank you so much. मैडम आपने Thank you once again to everyone. We would like to continue our program.